My name is Amit Kumar Ganguly and you all are watching Bollywood Hangama. आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हमारे साथ में एक लेजेंड मौजूद हैं एंड जैसे जैसे मैं उनके इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था मुझे डर लगने लगा था बिकॉज ही हैज़ संग some amazing songs. He's carrying a wonderful legacy. We have with us one and only one Amit Kumar. बहुत बहुत स्वागत है आपका सर. Namaskar. बॉलीवुड हंगामा पे and It's my pleasure. how do you look at your journey, sir? It has been a phenomenal journey. You still look so amazing. Journey has been, I would say, lots of ups and downs, and somehow I managed. This is my personal view, but I enjoyed every moment from the very beginning. Till today also I'm enjoying. It was not smooth all the time, which is, I think, it should be like that for any youngsters also. You cannot expect everything should be smooth all the time. My graph came down and again climbed up and again like that. On the whole, totality, I enjoyed. I'm still enjoying. You're still enjoying, still working, you're still coming up with the songs. एकदम. Every week I do रियाज. मैं रोज रियाज नहीं करता हूँ जो पहले करता था. But every week I sit on my harmonium, I compose. आई डू द 10 थाट जो मुझे मेरे गुरुजी सत्यनारायण मिश्रा जी सिखा के गए, वो 10 थाट में प्रैक्टिस करता हूँ जस्ट टू कीप माई वॉइस क्लीन. एंड आई एम ऑन द लुक आउट फॉर न्यू कॉम्पोजिशंस, न्यू आइडियाज, एंड आई हैव सीन ऑल द, आई हैव वर्कड with all the great music directors of the past, even the youngsters. Pritam was the last one who made me sing Dil Mein Baji Guitar, you know that song. Apna Sapna Mani Some Mani Mani. You've had some phenomenal songs. You've sung I think around 170 songs apparently for R.D. Burman. बहुत से आपके मशहूर आपके गाने रहे. 1976 में पहला आपका बड़ा गाना आया था, बड़े अच्छे लगते हैं. And even now you've been singing. You've sung for all the biggest of stars, including Dilip Kumar से Salman Khan, Shah Rukh, Aamir, everyone you've sung for. One question that I've always thought, and I had thought that whenever I meet you, I'll ask you. Considering that you've had such a phenomenal journey yourself, why is it that we always refer to Amit Kumar vis-a-vis Kishore Kumar? Because you've had a phenomenal journey of your own as an individual. This question is, a very, not a very difficult question. At the same time, it's the answer is very, I'm going to give a very true answer. In a way, the comparison part comes. How do you feel? आपको कैसे लगता है आप किशोर साहब के बेटे होके, how you had to deal being the son of such a great man? So that was my biggest challenge. Correct. And I faced it. शुरुआत में all the music directors that time, before बड़े अच्छे लगते हैं days, I sang for Madan Mohan, the song never came out. I sang for Salil Chaudhary, that song never came out. I sang for Sapan Jagmohan. Sapan Jagmohan was the first music director जिन्होंने मुझे chance दिया था, लेकिन the song never came out. The 3 songs never came out outside my father's camp. And उसके बाद R.D. Burman comes in. And then Lakshmikant Pyarelal and Kalyan Ji Anand Ji, Rajesh Roshan, Bappi Lahiri, and then Anand Milan, Anu Malik, even Nadeem Shravan when they were not Nadeem Shravan. But they were all kind to me. मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी नहीं. But they all had the feeling as if अरे यार किशोर दा का लड़का है, चलो इसको ट्राई करते हैं. तो that way I was very lucky. और ये जो comparison का जो बात है ना, वो एक तरह का मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा, जो मैंने कहा आपसे जी. बट वो द फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर हु रियली टोल्ड मी point blank on my face, that was R.D. Burman. What did he say? He said, don't copy your father. You don't have to clone him. तू तो उनका लड़का ही है ना. During बड़े अच्छे तो मत कर, ऐसा मत कर, तू आराम से गा, अपने हिसाब से गा. So if you listen to बड़े अच्छे लगते हैं, I don't sound like Kishore Kumar. I sound like Amit Kumar. 2 lines, sir. बड़े अच्छे लगते हैं. That song I can sing in my sleep also. Sure. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम. वाह, ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल. ये हमेशा से देखने में आया है, चाहे एस डी बर्मन साहब हैं या फिर आर डी बर्मन साहब हैं और भी बहुत से जो फादर सन जो डुओ रहा है जी. वो एक जद्दोजहद रहती है कि वो एक इज्जत भी है फादर के लिए. बिल्कुल. लेकिन एट द सेम टाइम अपना भी एक
एक जुनून है कि अपनी खुद की एक पहचान होना चाहिए, खुद का एक वजूद होना चाहिए, which is I think a very interesting battle that any son or daughter yes, can yes, have yes, possibly. it is. But in the end, you are the winner. Yeah. I am the winner. नहीं तो मैं आज आपके यहाँ क्यों बैठा हूँ, बॉलीवुड हंगामा में बैठा हूँ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. पीपल आर स्टिल क्रेविंग फॉर मी अमित कुमार, वी वांट अमित कुमार. मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था उस वक्त कि लिसन, दिस लाइन इज एन लाइन, यू नो, इट्स नॉट अ इजी लाइन. आई हैव गिवन यू द. उन्होंने मुझे कलकत्ते से जब बॉम्बे लेके आए, व्हेन ही कॉल्ड मी टू बॉम्बे and he introduced me at Shanmukhanand Hall in 1973, and that show was Daddy Kishore and Sunny Amit. S.D. Burman was the chief guest, and there was Kalyan Anand ji, everyone, all the music directors were there. And then he told me, this is the platform I've given you, now rest is yours, now get out and do it. Wow. So then I had to work literally hard. I had my group, 2-3 musicians लेके मैं गुजरात टूर कर रहा हूँ, महाराष्ट्र टूर घूम रहा हूँ, इधर उधर. कैलकाटा वॉज ऑलवेज, आई स्टार्टेड फ्रॉम कोलकाता. ये जो क्या बोलते हैं, अपना एक मकाम बनाने के जो एक ये था ना, एक जुनून था, वो शुरू से ही था मेरा. एंड थैंक्स टू माई फैंस ऑल्सो. अब जब स्टेज पे गा रहा हूँ मैं, तो वो तो बोलेंगे कि हाँ किशोर कुमार, तो मुझे गाना ही पड़ता है. आज भी गाना पड़ रहा है उनके गाने. तो आज जब मेरा शोज होता है तो 75% किशोर कुमार होता है, 25% मेरे गाने सुनते हैं. नियर फ्यूचर वी आर प्लानिंग टू हैव 75% अमित कुमार, 25% किशोर कुमार. Because you have the body of work, sir. Yeah. You So have that this body has of to happen now. Now it's high time. एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 76 में आपका ये बड़े अच्छे लगते हैं आया था. उसके बाद फिर नेक्स्ट फ्यू इयर्स आप और किशोर साहब दोनों जो हैं, यू वर एट योर पीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनके भी गाने बहुत मशहूर हैं. He was the number one. Yeah. Nobody could come and penetrate into his territory. But you were having some big hits. I was Kumar Gaurav was launched. parallel, and yeah, became yeah. the Kumar Kumar Gaurav's Gaurav wife. came, Love Story came in 1982. Right. And they were like the songs, they're still a rage. मैं कह सकता हूँ कि वो that was my peak time, absolutely. I was here, I went there. And again thanks to R.D. Burman and Rajendra Kumar ji. तो वो एक टीम हो गया पूरा. And Kumar Gaurav was also a newcomer. तो and Rajendra Kumar and my father were very good friends. तो उन लोग वॉक करते थे बीच पे. तो वहाँ पे उनका एक अजीब तालमेल था शुरू से. ओए किशोर कुमार छोड़ो, तो वही बोलता है छोड़ो. छोड़ो क्या अभी तक मालूम नहीं है. आई डोंट नो, बट छोड़ो. तो उन्होंने कहा गया छोड़ो, सुना तेरा लड़का गाना गाता है. बोला हाँ छोड़ो गाता है. बोले तो हो जाए मिलन. तो दैट इज हाउ आई गॉट एंड आई बिकेम हिज वॉइस. 5 साल वी बैटेड वेरी वेल until all the films started flopping. फिर जैसा होता है, you have to go out. But again, I came again. मतलब कि I was there throughout. As I told you in the beginning, it was like this, and then again it came like that. फिर ऐसा. It was like that. It was like a wave, you know. समुद्र का जो लहर होता है ना, ये. This was like that. I took it and I enjoyed. 78 you had आती रहेंगी बहारें, कस्में वादे, ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा, बातों में, that is 79. And then Love Story, तेरी याद आ रही, all the songs which were like really hit. Even Kumar Gaurav's बातों में was yes Basu Chatterjee's film, Rajesh Roshan. So ये phase वो phase है जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया कि that Kishore ji was at his peak. What were the discussions like? At any point of sir, was there any competitive streak between the two of them? No, not at all. Yeah. It was not. It was very healthy. I'm telling you honestly, that time, the 70s when I came in, early 70s, मैं आया था, we three were newcomers, myself, my friends, Suresh Vatkar, Amit Kumar and Shailendra Singh. We three were the new lot, you know. I was singing parallelly and all the music directors were so kind. तो ये जो कॉम्प्लेक्स वाला चीज था ही नहीं. ये मैं कहता हूँ, when my father expired in 1987, 13th October, पिताजी जैसे गए तो एक सिंपैथी वेव शुरू हो गया. और सब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सब ने कहा कि अमित कुमार जो भी गाना होगा किशोर कुमार स्टाइल तू ही गाएगा. तो 1987 to 94 I was singing with all the music directors. Yeah. Anand Milan came in, Bappi Lahiri was there. And I was doing Rajesh Roshan, until
there were a lot of Kishore Kumar's Voices. came. उस वक्त the recording companies came. नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं. Anyway, I'm being very honest. आके ऐसे हो गया घूम फिर के एकदम. उसके बाद I don't know what happened कि everybody started avoiding me. तो मैं देखा कि यार ये तो यहाँ पे कुछ मामला अलग ही लग रहा है मुझे. तो मैं किसी को ब्लेम नहीं किया, मैं खुद हट गया. मैं आई टुक द बैक सीट. मैं खुद ही हट गया. धीरे धीरे आई वेंट बैक. Oblivion tuck. I was nowhere. There's a song of Beatles, Nowhere Man. I became the Nowhere Man. But there is always a comeback. Then my creativity started. Fardoon, my creativity started then. Then I started composing. भगवान देता है, ऊपर वाला बोलता है ठीक है, don't worry. I took the harmonium, I started composing. मैं बोला मैं म्यूजिक दूंगा. And my first music came out 1987 was Oh Sweetheart from Universal. It was released in July and he died in October. वो गया आया गया. But मैंने वो छोड़ा नहीं वो जोश. Then I did an album called Mad for CBS Records. R.D. Burman, he released the album and he was so happy with the album. It was a satirical album, my own compositions. And it was the songs, गीत लिखे थे मिसेस किशोर कुमार, लीना जी wrote the songs. वो एल्बम R.D. Burman ने रिलीज किया and he was so happy. सर के दिन जो किया है, you're ahead of times. वो भी एल्बम ये आया ये गया. About 7 years ago, the album was again relaunched by EMI company and it did very well that way. So my artistic, my creative ये went alongside. मैं गाता गया, करता गया. Stage shows में मेरा चलता गया. I was doing stage shows. The people loved me. I know Bollywood sort of ऐसा कर दिया मुझे. और एक अजीब एक हवा फैलाया गया कि ये अमित कुमार बाप रे वो तो पता नहीं क्या है. मैं क्या हूँ भाई, वही आई एम अ सिंपल मैन. कम एंड टेक मी, आई एम देयर. आपको पता है क्या है अपने यहाँ पे इंडस्ट्री में. इट इज फेक इन सम वेज. आई वुड बी वेरी ब्लंट टू. एंड इट वॉज आफ्टर 87, नॉट बिफोर दैट. लेकिन मैंने हारा नहीं. आई एम स्टिल देयर. Now I'm doing lot of shows all over the world, traveling. I'm composing. I'm making my own music company, Kumar Brothers Music, launch in January on YouTube channel, official, my own compositions. And I want youngsters should come and join my company. Under my guidance, my music, they should sing. Even I would invite all the composers from the industry. Let's do it. Come and join my company, Kumar Brothers Music. Recently I have tied up with Mumbai Medley and I'm very happy. The creative side is going on. और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ to Bollywood music composers of today's youngsters, they please make me sing. I am there. ये जो गलत मेरे बारे में सबने पता नहीं क्या एक there's a rumor कि अमित कुमार is a very difficult man. I'm not a difficult man. Do you think I'm a difficult man? आपको लग रहा है? Not at all, sir. So yes, I was a bit hurt that time in the end of the 80s because वो एक राजनीति हुआ था उस वक्त. I'm being very honest. But ठीक है, भूल जाओ. पुरानी बात है, भूल जाओ. If we can have 2 lines from any of the song from Love Story, sir. लव स्टोरी में जिस गाने के लिए मुझे फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, आपको पता है मैंने अपने पिताजी को हराया वोट्स में. Okay. My father was there, आशा जी was there, परवीन सुल्ताना जी was there. मैंने सबको हरा दिया. मतलब कि दैट वे आई किशोर कुमार को हराना, माय गॉड. उस वक्त फिल्म फेयर के रिपोर्टर्स थे, गोपाल कृष्ण जी थे. ही वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर. ही रैंग माई फादर. उन्होंने कहा कि अरे किशोर, तेरे लड़के ने तेरे को हरा दिया. तो ही वॉज सो हैप्पी. आई रिमेंबर दैट टाइम आई वॉज परफॉर्मिंग इन राजकोट में शो था मेरा. तो उस वक्त मोबाइल था नहीं. तो माई फादर रैंग मी फ्रॉम मुंबई. अरे यू कंग्रेचुलेशंस, यू जस्ट गॉट द फिल्म फेयर अवार्ड एंड मेरे को भी हरा दिया तूने. आई वॉज सो हैप्पी. बट द बिगेस्ट मोमेंट फॉर मी वॉज ही गेव मी द अवार्ड ऑन स्टेज. That was the great moment. My father giving me the award, the whole auditorium stood up. तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे. And he just cuddled me and
वी स्टूड एम्ब्रेस फॉर एटलीस्ट फॉर कितने 1 मिनट तक पकड़ के रहे ऐसा करके, एंड एवरीवन वाज क्लैपिंग. I'm sure. That was the biggest. He gave me the award. Let's have the song, sir. याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है. Thank you. Fantastic. You also had a huge hit in Laila O Laila from Qurbani. लैला लैला में मेरा कुछ था नहीं. I sang for Amjad Khan and he was playing the drums. And Feroz Khan, another man I admired over the years. He made me sing and he was so. मेरा क्या उसमें कंचन का ज़्यादा ही था पूरा गाने में. मैं बीच में आगे गुलुक गुलू यही किया. And that song was a hit and अभी तो remix में भी वही गाना हुआ. Correct. और it was a hit song. Right. And Feroz Khan, you know, during the recording, he said me, Amit, मेरे होंठ को देखो, मैं जैसा कर रहा हूँ, गुलू. अब मेरा होंठ को देखो, हाँ मैं होंठ को देख रहा हूँ, गुलू. मैंने गुलू. तो गुलू हिट हो गया. You were also part of Tezab, which was, I think, a huge hit at that point of time. That was a big hit, super hit, 88. Yeah, and the song कह दो कि तुम, I've seen that film in the theaters and वो इतने strategic time पे वो गाना आता है कि इतना emotion packed वो लम्हा है जब वो गाना आता है, that it has the impact on the audience. I became the voice of Anil Kapoor. Yeah, you've done several films after Anil Kapoor, I became his voice. अभी हम लोग कुछ 6-7 महीने पहले he was coming from Goa, we were on the same flight. तो मेरे को देख बोला ऐसा हो गया. फिर वो सब पुरानी बातें सब. I became his voice and we did so many films. Right. His best song was from the film Khel, but that film didn't do well. But I the loved song, that film. Sune Sham Savere, beautiful song. Rajesh Roshan. Yeah. What a composition, huh? Very nice song. Can we have that Yeah. 2 lines from that song, sir? Hey, hey, tarari rara, hey, hey. सुने शाम सवेरे जब से है मेरे तब से मेरा वर्ड भूल गया है. तुम Beautiful song, sir. I love that. Rajesh Roshan gave me some wonderful songs. He always was always, you know, he was after me. सभी थे, but he was one of them. He always अमित का गाना होना चाहिए. No, I'm sure, no doubt about that. एक और गाना जो आपका बहुत पॉपुलर रहा है वो है तिरछी टोपी वाले त्रिदेव में. वो तो नसीरुद्दीन शाह. मतलब ऐसा आई थिंक आज के दौर के लोग शायद उसके गाने की पॉपुलैरिटी का एहसास नहीं कर सकते. नहीं वो जबकि कुछ नहीं था उस वक्त इन टर्म्स ऑफ जो आज के टाइम में कम्युनिकेशन के टूल्स हैं. जी. लेकिन वो गाना हर तरफ बजता था. हाँ, वो पुलिस भी पीछे पड़ते थे सब यंगस्टर्स के उस वक्त, है ना. तो अच्छा, उस गाने का एक मजेदार किस्सा है, बताऊं मैं? जी बिल्कुल. वो रिकॉर्डिंग के दौरान जब हम गए तो विजू शाह, अनदर टैलेंटेड सन ऑफ कल्याण जी आनंद जी, तो हम गए रिकॉर्डिंग में. सपना मुखर्जी वाज देयर एंड गुलशन राय सन राजीव राय. राइट. तो गाना जो था वो नीचे था, ऑक्टेव वाज डाउन. जैसे कि ओए 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 ओ होवा ओए ओए. तो मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा है. तो बोला क्यों? बोला नीचे लग रहा है. तो राजीव राय बोले कन्विंस मी, व्हाट डू यू नो नीचे लग रहा है, दिस इज अ सिचुएशन. लिसन, ये गाना बम होना चाहिए, इसका ऑक्टेव ऊपर करो, ट्राई. तो ऊपर किया मैंने, और भी ऊंचा था. बोला हाँ, बोला नाउ इट वर्क्स. तो इसमें मेरा भी ये है, मेरा कंट्रीब्यूशन है. नीचे ऑक्टेव से मैंने बोला ऊपर करो. तो दैट ओए ओए अभी भी जब मैं गाता हूँ ऑन स्टेज, ऑन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, क्लिक्स. राइट, आई एम श्योर. तब मुझे याद आता है जो मैंने बोला था. It's very difficult to imagine a song like that in a lower scale. लोअर में वो बात नहीं आती, वो मजा नहीं है ना. ओए ओए नीचे बेस में वो हिट, वो
ऊपर का ही नोट मजा आएगा ना. कभी ना was Jatin Lalit and Deewana Dil Deewana. I sang for Shah Rukh Khan. Which was a huge hit as well. Yes, I think it was his second or third film. Yes. And but that song मैं और उदित नारायण we both sang. और वो गाना बहुत अभी भी हिट है. Super hit. It is. Super hit it is. And very well picturized. I sang another song in that film. It was a solo song. सच्ची ये कहानी है. Yes. That song. Some वो उतना हिट नहीं हुआ लेकिन that was a very situational song. Yes, it was. And Shah Rukh Khan did a fantastic job that way, you know. I've always seen the heroes for which I have sung, how they, you know, lyrics कैसे बोलते हैं. Shah Rukh is very good. Yeah, he is. That's very important. तो lip sync करना. जी बिल्कुल. मैं बड़ा minutely देखता हूँ. फिर से अगर हम बात करें तेजाब की, so we would love to hear a couple of lines. कह दो कि तुम was fabulous. आपने 1 2 3 भी आपने सोलो गाया है. हाँ 1 2 3 भी गाया मैंने. Right. ये दोनों गाने सुपर हिट हुए. सुपर हिट. लक्ष्मी जी हैड अ पेक्यूलियर, ही कुड, क्या बोलते हैं ना कि आगे का सोचते थे एकदम. अमित कुमार देख ले गाना क्या होगा. लक्ष्मी जी अभी तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, आप अब तक देख ले तो स्टार बन जाएगा. और वही हुआ. कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना. कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना. देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना. यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है. Fantastic. ये तो अभी भी मैं जब गाता हूँ स्टेज पर, मतलब कि फिर से बोलते हैं इनको अगेन, सिंग अगेन. Right. ग्रेट कॉम्पोजिशन. दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है. हाँ, राजेश खन्ना जी. के लिए मैंने गाया था. बिकॉज यू नो वाई, बिकॉज माई फादर, ये बड़ा मजेदार किस्सा है. जीवन प्रकाश जी की फिल्म, तो माई फादर वॉज रिलक्टेंट टू, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट द बजट नहीं था. और लता जी का 2 अंतरे और 1 अंतरा राजेश खन्ना. तो नो दैट वे आई गॉट दैट सॉन्ग. माई फादर यूज्ड टू चार्ज, बहुत ज़्यादा पैसा लेते थे, तो शायद बोला चलो लड़के को बुलाओ. तो कहाँ, समझ लीजिए उस वक्त मेरे पिताजी यूज्ड टू चार्ज पर सॉन्ग, दैट टाइम ही यूज्ड टू चार्ज 1,30,000 1,40,000 पर सॉन्ग. और मेरा जो था रेट, मैं बोलूँ आप गिर जाओगे, बताइए. 2,500 रुपये. 2,500. हाँ, तो हाँ 1.5 लाख से 2,500, तो 2,500 में मैं मिल गया. मेरे राजू बोला गा देना, क्या है तेरे को, राजेश खन्ना का गाना है. मैंने बगा देता हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है. And it's a hit. It's a classic. Super. I wish there was justice was not done. At least मुझे पूरा गाना भी अगर देता तो 2 अंतरा तो 1 ही अंतरा दिया. But that अंतरा is which I sang for Rajesh Khanna is the main, क्या बोलते हैं गाने का जो नहीं, but that is something that stays in the mind. absolute. हाँ, वो राजेश खन्ना हो when he comes, you know. Right. अपने ये गिराते हैं नशे. हाँ, क्या ब्यूटीफुल. So हो जाए सर. दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम यही इनाम दिया है. फिर वहां से राजेश खन्ना आता है, अपने ही गिराते हैं नशे मन के बिजलियां. इट्स द फर्स्ट टाइम आप रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझे. No, it's But I'll make it a point. I'll sing this song on stage. No, you should. It's a very hit song. It's a classic, sir. It is, I think, and I'm sure the people will love it. There are 2 songs. मेरे साथ मैं कहूँगा, take it in a humor way, अन्याय किया गया. मुझे पूरा ये गाना पूरा देना चाहिए था मुझे, और एक गाना रोज रोज आंखों तले, वो भी मुझे पूरा क्यों नहीं दिया गया. Why? रोज केस कर दूंगा मैं. अभी केस करके क्या होगा अभी. सर रोज रोज आंखें तले भी हो जाए. 2 लाइनें. वो भी देखिए, वो गाना भी आशा जी का था. वो क्या हुआ देखिए, आपको थोड़ा इसका हिस्ट्री तो बताऊं, आप एंजॉय करोगे. बिल्कुल सर. रोज रोज आंखों तले, जीवा पिक्चर, संजय दत्त. आई गॉट द सॉन्ग बिकॉज ऑफ संजय दत्त, बिकॉज इट वॉज अ फीमेल ओरिएंटेड सॉन्ग. आशा जी का ही था, 3 अंतरे उन्हीं का था. देयर वॉज नो मेल वॉइस एक्चुअली इन दैट सॉन्ग. तो ऐसा हुआ कि वहां पे संजय दत्त को पता चला
ही सेड कि अरे यार मैं क्या करूँगा, ये सब लड़की गाएगी, मंदाकिनी गाएगी और मैं क्या करूँगा, खड़े रहूँगा क्या? तो इसमें काफ़ी डिबेट हुआ। तो देन देयर वाज वन अंतरा इनकॉर्पोरेटेड, गुलजार साहब ने लिखा। अभी उस टाइम फिर अभी अचानक हुआ ऑन द रिकॉर्डिंग स्टूडियो इट हैपेंड। तो आप पंचमदा ने बोला चलो भाई फ़ोन करो, किशोरदा को फ़ोन करो। मैं फादर वाज अलाइव, किशोरदा को फ़ोन करो यार। किशोरदा को फ़ोन किया, पिताजी ने फ़ोन उठाया, दोपहर का वक्त था। तो पंचमदा ने बोला हाँ, पिताजी को उनका एक तालमेल चलता था, उन लोग कभी हलो नहीं बोलते थे। पंचमदा बोला हाँ, तो बाबा से हाँ, तो पिताजी बोला कब तक हाँ करोगे, कम टू द पॉइंट। पंचमदा ने बोला हाँ, आपका लड़का क्या कर रहा है? बोलो तो सो रहा है, दोपहर को सोता है वो। बोलो उसको भेजो, आपको गाना मिल गया है उसको। तो पिताजी बोला पंचम मैं किस खेत की मूली हूँ? बोले तो आपका बजट ही नहीं है आपका बजट ही नहीं है। राइट। तो कहाँ 1.5 लाख से अगेन 2,500। तो मैं गया, मेरे को उठाया, बोले जा तेरे को गाना मिल गया। तो आई वेंट, मैं वो गाना गाया, रोज रोज आंखों तले। मैंने ऐसा ही गाया, ठीक है, थर्ड अंतरा ठीक है, गा दिया। लेकिन यू नो दैट टाइम द सॉन्ग वाज नॉट अ हिट सॉन्ग। इन 85 इट वाज रिलीज, आई थिंक 84 85। उतना हिट नहीं था। धीरे 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 नाउ दिस सॉन्ग हैज बिकम लाइक, मतलब व्हेन आई गो ऑन द स्टेज मैं ऐसा ही बोलता हूँ, रोज रोज ऐसा करते हैं। तो बाप रे बाप, 2 लाइनें हो जाए सर। हाँ। तो पंचमदा ने मुझे बोला कि है तेरे को मिल गया गाना, हाँ ठीक से गा। तो बोला क्यों, बाबा को नहीं गवाया, मेरे को क्या, हाँ किशोरदा को मैं छोड़ा था, तेरे को मिल गया, ठीक है। तो ये चलता है। बोला मैं क्या, जैसा मेरे को देख, मैं जैसा गा रहा हूँ वैसा गा। तो पंचमदा मेरे को गाना सिखा रहे हैं, आंखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है, उससे बड़ी चीज समझ आ रहा हो। तो ऐसा गाऊं क्या? नहीं तू तेरे जैसा गाना, तो तुम ऐसा कर रहे हो। फिर मैंने गाया। And when you're imitating RD ji, I think this is exactly the way. मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं, तू अपने जैसा गाना। फिर मैं गाया, आंखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है, बेचारे से फिर भी अपना नींद उड़ा दी है, रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आंख में जिस तरह ख्वाबों का दिया जले, वाह वाह, हो रोज रोज आंखों तले। ब्यूटीफुल, थैंक यू। किशोर कुमार जी का एक बहुत मशहूर था उनके बारे में कि दैट वो मूड के हिसाब से वो गाते थे। और ये भी स्टोरीज हैं कि कोई गाना है तो वो लेट जाते थे एंड मे बी ही यूज्ड टू ईट अ पान और समथिंग लाइक दैट। लेट के भी गाया उन्होंने एक गाना, मैंने देखा। हाँ, वो कुछ भी करते थे वो एंजॉय करके गए। वो ही एंजॉयड, उन्होंने जो किया एंजॉय, मतलब कि ही व्हाट शुड आई से, उनसे सीखने को मिला बहुत कुछ उनको देख के। व्हाट ही डिड, उनका जब एंट्री होता था स्टूडियो में, तो अगर स्टूडियो ऐसे बैठे हुए हैं सब, जैसे किशोर कुमार का एंट्री हुआ था, बम दादा आ गया, किंग एंटर्स, यू नो। और आके उनके साथ हम लोग भी आते थे, और वो जो सेक्रेटरी कम ड्राइवर अब्दुल मुनाफ, हु यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द मनी, एंड ही वाज द ड्राइवर एज़ वेल। हाँ, ही वाज ड्राइवर कम सेक्रेटरी। अब्दुल केम व्हेन 1958-59 जब चलती का नाम गाड़ी शुरुआत होती, ही केम एज अ ये जस्ट वो जब सब एक्स्ट्रास को लेके आते थे। फिर धीरे धीरे ही केम नियरर टू माई फादर, ही बिकेम हिज ड्राइवर, देन लेटर ऑन ड्राइवर कम सेक्रेटरी, ही यूज्ड टू हैंडल द मनी पार्ट ऑल्सो। तो हम लोग सब बोलते थे बाबा तुम इसको क्यों इतना सर पर चढ़ाते हो, ये ड्राइवर है। हाँ, बोले नहीं, उसके हाथ में बरकत है। रोज में पास हो रहा, तुम लोग हाथ में लेके आता है, जो मैं बोलता हूँ लेके आता है। गाने में अभी समझ लीजिए गाना चल रहा है, पिताजी रिहर्सल कर रहे हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल।
जैसे वो एक फिल्म थी जोशीला, हाँ देवानंद, तो वो गाना था किसका रास्ता देखे। दिस वॉज वन ऑफ द, ये आई एम गिविंग यू, दिस बाबा इज टू डू माई फादर। जब तक ये नहीं आया ना, तो लिख रहे हैं अपना, टेकिंग इस टाइम। अंदर देव साहब बोल रहे पंचम क्या हो रहा है, कि टेक करो यार, हाँ टेक करो। तो पिताजी पंचम, हाँ 1 मिनट में, तो फोन किया, हाँ दादा, वहाँ से वो रिकॉर्डिंग, हाँ दादा, हाँ बोलो पंचम, बोल टेक करे, रेडी है, हाँ 1 मिनट, अब्दुल अब्दुल अब्दुल, हाँ अब्दुल अब्दुल पैसा मिला क्या, जल्दी से बता दे। तो अब्दुल बोला मिल गया, चलो टेक करो। हाँ? किसका रास्ता देखे, सब बैठे हुए, साहिल लुधियानवी, सब हंस रहे अंदर सब। हाँ पैसा आया, चलो टेक। माई फादर वॉज लाइक दैट, यू नो। वो चाय का जो है ना, चाय मिला, चाय 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 मिल गया, हाँ मिल गया, चाय मिला नहीं मिला, अच्छा ठीक है, अच्छा रिहर्सल करो रिहर्सल करो। Which 3 songs of yours would you call the best so far? बड़े अच्छे लगते हैं इस वन, सुने शाम सवेरे, हाँ जिसमें मैं क्या कहूँ, मैं जान डाल के गाया मैं। एंड द थर्ड वन इज आई sang a song which was under my father's composition from our home production किशोर फिल्म्स। पिक्चर का नाम था शाबाश डैडी, आप जरूर सुनिएगा गाना। दौरे खिजा था दिल के चमन में, दैट माई फादर मेड मी सिंग। दौरे खिजा था दिल के चमन में, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, इट वाज पिक्चराइज्ड ऑन मी। इट्स अ गजलिश टाइप ऑफ सॉन्ग, थोड़ा गजल और रोमांटिक उसके। आई थिंक दीज 3 songs I did justice. Who are your top 3 most favorite singers of current generation? I'll be very honest, favoritism word is not in my dictionary. मैं कोई भी आर्टिस्ट को सुनता हूँ, चाहे वो बाहर का हो, वेस्टर्न हो या इंडियन हो, मैं उस पर जज करता हूँ। That way, it's not that he is the best or she is the best. No, this is not like that. But there are many artists now who are really talented, who have made their position. You know, from today's generation, I like Shreya Ghoshal's voice. She's a very, she's got a very sweet voice texture. Sonu Nigam is very talented, very talented, super talented. And Arijit has got a good voice. He's got a good voice. There are many, but Right. you know that way. Favoritism word is a very dangerous word. Sure. Which 3 Hindi songs are on your playlist right now? My father's, I like Dukhi Man Mere from Fantush, the old Devanand S.D. Burman. I think the way he sung that song, सुनने में लगता है बड़ा easy गाना है, लेकिन easy नहीं है. The way he sang, beautiful. Dukhi Man Mere. And Rafi Saab's, I like कहीं बेख्याल होकर from Teen Deviyan. It's a ghazal, beautiful. These 2 are great. और आज के गाने में मैं कहूँगा today's songs, I like that song, बेख्याल. बेख्याली कबीर सिंह। हाँ कबीर सिंह, nice. It's quite catchy. ऐसे ये बहुत सी स्टोरीज जो सामने आती हैं कि दैट हु इज बेटर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी या मुकेश, एंड स्पेशली बिटवीन मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जो एक हमेशा जो रहता था। आप इसको कैसे देखते हैं? आज भी ये आवाज़ें जिंदा हैं एंड पीपल दे हैव देयर फैन क्लब्स। Yeah, they have, and they are all. This is a very childish, what should I say, question. I'm not, because of you're asking. ये मीडिया ने बनाया है ये इसको. Always there is a group. There is a anti-Kishore group, there is an anti-Rafi group. I don't know why this happens. Both are great artists in their own way. Both were great artists. The love and respect they had for each other, I have seen. When Rafi Saab started, my father was struggling, and how they came together. Of course, there was a healthy क्या बोलते हैं? Competition that was mic के सामने, okay. But behind the mic, it was like they were friends. And my father used to take tip from Rafi Saab also. Rafi Saab यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा, हाँ ऐसा करो, बहुत अच्छा है. You know, that was the thing. Even Rafi Saab used to take, यहाँ पे एक ऐसा करूँ. So I have seen this from the close quarters. ये लोगों को समझते नहीं. ये कुछ भी बोलते हैं, नहीं ये किशोर कुमार तो उनको गाना नहीं आता था, क्लासिकली नहीं सीखा. एंड रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब हैं. अब एक जॉनर बोलता है किशोर कुमार है, रफ़ी साहब को कुछ नहीं आता है. दिस इज ऑल ठीक है, अपना अपना ख्याल होता है. यू हैव योर ओपिनियंस, ऑफ कोर्स ओपिनियन होता ही है, क्रिटिसाइज कर सकते हो आप, वो बात नहीं है, बट डिग्रेड नहीं करने का.
एक आर्टिस्ट को दूसरे ऐसे को, एंड मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है इस मामले में, बिकॉज आई हैव सीन बोथ ऑफ देम, बोथ वर सुपरलेटिव आर्टिस्ट इन देयर जैसे आपने जिक्र किया कि रफ़ी साहब किशोर जी से टिप्स लेते थे, किशोर जी रफ़ी जी से, लेकिन जैसे वो एक कल्चर था कि सारे म्यूजिशियंस साथ में बजा रहे हैं, सिंगर्स दोनों अगर हैं तीनों हैं वो साथ में गा रहे हैं। Yeah. अभी आज के टाइम पे अगर जैसे डुएट्स भी होता है तो एक ने एक तरफ गा दिया, दूसरे ने कहीं दूसरी तरफ गा आज तो दिया। बहुत इजी हो गया है। बट डू यू थिंक दैट जो एक इमोशनल टच है वो मिसिंग है कि अगर 100% अगर डुएट है तो साथ में होना ऑफ चाहिए? कोर्स इट्स मिसिंग, बट क्या करेंगे अभी टाइम्स हैव चेंज्ड, अभी तो और अच्छा हो गया है। उस जमाने में अगर एक गाना 4 घंटा लगता था, 4 आवर्स, whether it's a duet or a solo song, 3-3.5-4 घंटे लग जाते थे विद ऑल द ऑर्केस्ट्रा प्लेइंग, मोहम्मद रफ़ी एंड किशोर कुमार डुएट हो रहा है, या लता मंगेशकर किशोर कुमार हो रहा है, जो भी हो, मैं गा रहा हूँ, मैं भी सोलो गा रहा हूँ, 3-4 घंटा आराम से लगते थे, इफ नॉट 5 आवर्स। थक जाते थे हम। म्यूजिशियंस बजा रहे हैं, टेक जैसा टेक शुरू, म्यूजिशियंस मिस्टेक कर रहे हैं, कट, फिर से मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, ये करते करते आफ्टर 10-12 टेक्स अंदर से ओके ओके बोल दिया म्यूजिशियन। ओह माय गॉड, ये जो होता था, लेकिन उसमें रिजल्ट देखिए आप, वो जो गला गर्म होता था, अभी भी देखिए उस गाने जब The सुनेंगे lasting value is still there, sir. स्टिल देयर, They're still so young. ये तो वो still जो fresh. लाइफ का जो फील है वो अलग ही फील है। अभी इट्स बिकम वेरी इजी, बट ये भी है कि आज डिजिटल, मैं समझता हूँ कि साउंड वाइज बहुत अच्छा है, इट इज़ फैबुलस। इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेन, द रिकॉर्डिस्ट एंड द म्यूजिक डायरेक्टर्स, आप 75% लाइव फील ला सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डू इट। आई एम वेरी लकी फरदून जी, मैं रफ़ी साहब के साथ भी डुएट गाया हूँ, पिताजी के साथ तो गाया हूँ, मैं मन्ना डे के साथ गाया हूँ, लता मंगेशकर के साथ गाया हूँ, आशा जी के साथ गाया हूँ, और क्या चाहिए? What else do you want? That's why sir, we said in the beginning it's like we having a I'm legend very- with us. मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ huge अपने आप को। privilege. और आज के सिंगर्स के साथ उदित नारायण के साथ गाया हूँ, सोनू निगम के साथ गाया हूँ, शैलेंद्र सिंह तो अब अपना दोस्त है, सुरेश वाडकर भी अपना दोस्त है। It's been a beautiful journey for me. Collaboration. If they were to make a biopic on Kishore Kumar Saab, what would be the title? Biopic is going on. It's just the discussions are going on. We are just कर रहे हैं. Anurag Basu had it in mind for No, quite some. अभी nothing has been finalized. We are just watching the scene. आपको पहले ही मालूम पड़ेगा जिस दिन होगा. You will be the first person to know. I will talk myself. Yes, now it's happening. Who do you think can possibly play Kishore Saab? It's very difficult to play किशोर कुमार, first of all. ऐसा भी हुआ कि मुझे भी कहा गया कि आप ही कर सकते हो, मगर I will not do it because I am a very bad actor, first of all, in front of the camera. And why should I do किशोर कुमार and get beaten and be compared? मेरी आधी जिंदगी कंपैरिजन में निकल गई है. I'm 67. Why should I? मैं क्यों रिस्क लूँ? उससे बेटर पीछे बैठ के पैसा कमाओ. How would you describe a gist of your journey as a singer in one word? Tough and good. Both. A song that defines your personality. It's my own composition and it's written by लीना जी, Mrs. किशोर कुमार. दिल का मेरे हाल तुम न पूछो, दिल का मेरे हाल तुम न पूछो, धड़कता है अब तक ये दिल, धड़कता है अब तक ये दिल, क्या ये कम है सोचो. This is the song. दिल का मेरे हाल तुम न पूछो, दिल का मेरे हाल तुम न पूछो, धड़कता है अब तक दिल, क्या ये कम है सोचो, धड़कता है अब तक दिल, क्या ये कम है सोचो. अभी कैश लाइन आ रहा है. तिनका हूँ मैं और ये जहाँ है सागर, डुबाया गया फिर भी डूबा नहीं हूँ, डुबाया गया फिर भी डूबा नहीं हूँ. तिनका कभी डूबता नहीं. What quality of Kishore Kumar ji you wish you had? The voice and the persona. Thank you very much. I think it was a great experience for all of us, and I'm sure that whoever is watching this interview, wherever they must be watching, I'm sure that they'll treasure this conversation. And thank you very much, sir. Thank you very much. I really enjoyed. Thank I you so really much. enjoyed. Thank you very much, sir. That's all we have from Warren and Gama. Keep on watching.
My name is Amit Kumar Ganguly and you all are watching Bollywood Hangama.